Hello students. In the previous video we have seen about the basic definition of vectors. What is vector? The quantity having magnitude as well as direction is called your vector quantity. What is the representation of vector? Any symbol has an arrow on it is said to be the vector quantity. Yeah, vector is represented by an arrow whose head tells about the direction and gives about the magnitude of the vector. After this, we have seen the types of vectors, in which we basically studied about two types of vector. The first one was your zero vector or null vector, and the second one was your unit vector. Clear? So here further we are going to classify the vector into several parts. Clear? So the third part of the vector is called your that is your like or parallel vector. Clear? The third part of vector is your like or parallel vector. So for getting the definition of like or parallel vector, we have to now take the two vectors in the pictures. तो दो वेक्टर्स के कंपैरिजन से ही आप इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. Two vectors are said to be the like or parallel vector if they have same direction. ये बात समझ में आ रही है? If they have same direction, मतलब suppose here is your this one is your vector A and this one is your vector B. ये बात समझ में आ रही है? Both the vectors have same direction. ये बात समझ में आ रहा? Both the vectors have same direction. Then they are called your like vector or parallel vector. Correct? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो सकते हैं. भाई दोनों की एरो की लेंथ क्या है, डिफरेंट. इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन मस्ट बी सेम. Whenever this condition is applied, then such type of vectors are called your like vectors or parallel vectors. So finally the definition of like vector or parallel vector is the vectors having same direction are called your like vector or parallel vector. Clear? The next आपका ये that is your 4 1. दूसरा होता है आपका ये that is your unlike और एंटी पैरेलल वेक्टर. Unlike or anti parallel vector, what they are? The vector having opposite direction. Clear? The same direction is called like or parallel vector. The vector having opposite direction like this, suppose it is your vector A and vector B is ditto opposite to the vector A and this is your like this. Clear? This is said to be your unlike or anti parallel vector. यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये if anybody asked you what is the angle between like vectors, what is the angle between like vectors, ये बात समझ में आ रही है? So the angle between like vector is how much? That is your 0 degree. Why 0 degree? Because both are in the same direction. एक को दूसरे के ऊपर रख दोगे तो ओवरलैप कर जाए. इसका मतलब दोनों जब सेम डायरेक्शन, अगर कोई पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देन योर आंसर मस्ट बी योर 0 डिग्री. What is the angle between your unlike or anti-parallel vector? तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो A is said to be the going upward and B is seen to be going downward. So the angle between both of them will be your 180 degree. ये बात समझ में आ रहा है? इतना कोई प्रॉब्लम इसमें? डन. फिर आते हैं आप ये फिफ्थ में. तो फिफ्थ इज योर दैट इज योर कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर्स का क्या मतलब होता है? The coplanar vectors का मतलब vectors in same plane. Vectors in same plane are called coplanar vectors. अब plane का क्या मतलब है यहाँ पर? ये white board क्या एक plane. The geometry made up by double axes is said to be your plane. ये white board क्या आपका एक plane है. Clear? और अगर ये plane है और सारे vector अगर इसी plane पर present हैं, then that vector is said to be a coplanar vector. It means any vectors having same plane. इधर A है, इधर ये कैसा आपका B है, इधर इस तरीके से ये वेक्टर C है. ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं आपकी सेम प्लेन में हैं. That's why they are called your coplanar vector. ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो ये मेरा हैंड भी क्या आपका एक प्लेन. क्लियर? मेरा हैंड भी क्या है आपका एक प्लेन है. ये पड़ेगा तो गाल में पूरा प्लेन छप जाता है. इधर सुनो, ये हाथ भी क्या एक प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या एक प्लेन है.
तो अगर मैं यहाँ पर इस हैंड को यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ तो ये एक अलग प्लेन हो गया, ये एक अलग प्लेन हो गया। अब अगर सपोज कोई वेक्टर डी मैंने यहाँ लिख दिया, अब डी वाला जो वेक्टर है वो इस प्लेन में, बाकी ए बी सी इस प्लेन में, ए बी और सी को प्लेनर कहलाएंगे क्योंकि इनके प्लेन सेम है, लेकिन डी यहाँ पर को प्लेनर नहीं कहलाएगा क्योंकि वो एक अलग प्लेन का वेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। फिर यहाँ पर आते हैं सिक्स्थ में, तो यहाँ पर आ जाता है आपका ये एक और वेक्टर, दैट इज योर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है आपका? ये वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स। वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है यहाँ पर? ये तो सपोज आई हैव दीज वेक्टर लाइक दिस, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। वेक्टर ए इज स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, वेक्टर बी इज स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, वेक्टर सी इज स्टार्टिंग फ्रॉम एयर। If I made these three vectors like this, that is your vector A, and that is your what? That is your vector B, and that is your vector C. It means the starting point of each and every vector is common. The starting point of each and every vector is same. So that's why such type of vectors are called your co-initial vectors. And remember one thing, the co-initial vector doesn't नीड टू बी कोप्लेनर वेक्टर। ऐसा नहीं कि हमेशा को इनिशियल कोप्लेनर ही होगा। रीजन ये है यहाँ पर ये कि चलो अगर एक वेक्टर डी बना दिया इस तरीके से तो डी वेक्टर तो इस प्लेन का वेक्टर हो गया, और डी भी अगर यहाँ शुरुआत हो रहा है तो डी भी को इनिशियल होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि सारे को इनिशियल वेक्टर को प्लेनर हो ही जाए। ये बात समझ में आ रहा है? तो ऑल को इनिशियल वेक्टर्स आर नॉट को प्लेनर। कोई समस्या है यहाँ तक? ये डन। फिर इसके बाद एक छोटा सा और यहाँ पर किया जाता है आपका ये, एंड दैट इज योर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स व्हेन द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर इक्वल कब कहेंगे? जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो आपकी? सेम हो, और उसके साथ ही साथ दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या हो आपके? सेम हो, तब दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपके? ये इक्वलिटी ऑफ, दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। ये बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर क्या है आपका? ये दैट इज योर टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if there A point magnitudes is same and B point direction is same. इसका मतलब दो वेक्टर अगर A है और दूसरा वेक्टर B है, ये दोनों इक्वल कब कहे जाएंगे? जब दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? यहाँ पर आपकी ये सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ बी होना चाहिए। तो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे आपके? सेम कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स आर व्हाट? द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड मैंने वहाँ पर डिफरेंट किया था। तो सोचो कि अगर लाइट वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी क्या कर दिया जाए? अगर सेम कर दिया जाए तो लाइक और पैरेलल के अलावा कौन से वेक्टर कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर भी कहलाएंगे, क्योंकि लाइक या पैरेलल बोलने का उनकी डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम हो चुकी है। अगर आपने उनका मैग्नीट्यूड भी सेम कर दिया तो ये दोनों तरीके से बिल्कुल 100% एक दूसरे के सेम हो गए, इसलिए क्या कहलाएंगे आपकी? ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये डन। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? क्या पढ़ना है हमको? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर ये पढ़ना है कि दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, दो वेक्टर्स को किस तरीके से सब्सट्रैक्ट किया जाता है,
और दो वेक्टर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अलजेब्रा होल्ड्स फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अलजेब्रा ऑफ स्केलर्स आपको अच्छे से पता है। स्केलर्स का मतलब क्या होता है, नंबर्स। क्लियर, नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इसमें आप लोग एक्सपर्ट हो। देयर इज नो नीड टू टेल मी द अलजेब्रा ऑफ स्केलर्स, बट हियर इज अ न्यू क्वांटिटी दैट इज योर वेक्टर who has scalar like magnitude as well as direction. So we have to studied about the algebra of vectors, how to add these two vectors, how to subtract vectors, how to multiply vectors. Clear? And after getting this algebra, the vector portion will be over. Clear? So यहाँ पर क्या है, firstly during the algebra of vector we have to study about the, that is your addition of vector. Addition of vectors. The second algebra is what? That is your subtraction of vectors. And the third one is your multiplication of vectors. And the interesting thing जो आपका लोड कम करेगी कि डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं होता, हमको एडिशन पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है हमको यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन पढ़ना। सो लेट्स स्टडी एवरीथिंग अबाउट वन बाय वन। क्लियर? सो आई एम कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज योर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। क्लियर? सो हियर इज द टू मेथड्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। द फर्स्ट मेथड इज सेड टू बी योर graphical method, and the second one is said to be your analytical method. मतलब वेक्टर्स को जब ऐड करोगे तो आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना पड़ेगा कैसे ऐड हो रहा है। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, स्केल चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब प्योर ज्योमेट्री वाला पोर्शन है कौन सा आपका, ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड कौन सा मेथड है, उसमें कुछ नहीं चाहिए, एक छोटे छोटे फॉर्मूला डेवलप होंगे और उन फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि वेक्टर को कहाँ ऐड किया गया, किस तरीके से ऐड किया। ये बात समझ में आ रहा है? डन। सब्सट्रैक्शन में कोई टाइप्स नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आर फर्दर टू टाइप्स। क्लियर? द फर्स्ट वन इज सेड टू बी योर डॉट प्रोडक्ट and the second one is said to be your vector product, sorry, cross product. मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। दो वेक्टर्स होंगे यहाँ पर a और b, उन दोनों के बीच में या तो डॉट लगा होगा। दो वेक्टर्स होंगे आपके पास यहाँ पर ये a और b, उन दोनों के बीच में क्या लगा होगा, आपका क्रॉस लगा होगा। ये बात समझ में आ रही है? When the dot is present between two vectors, then such type of product is called your dot product. When the cross is present between two vectors, then such type of product is said to be your cross product. Clear? When you perform the dot product of vectors, vectors का dot product कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। ध्यान समझना, when the vectors are going to be in dot product, their answer become scalar. ये बात समझ में आ रहा है? है वेक्टर, इनका प्रोडक्ट वेक्टर आना चाहिए, लेकिन जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, स्केलर आ जाता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है आपका, ये इसको और बोलते हैं, दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ऑन कमिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट, व्हेन द वेक्टर्स आर गोइंग फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा, तो हमारी नई बात नहीं, नई बात यहाँ पर थी कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ गया। कैसे आ गया तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एन स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड योर स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? बट इन द क्रॉस प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द अनदर नेम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक। सब्सट्रैक्शन इज नथिंग, ये लिखा भले मैंने, बट यू फील दैट सब्सट्रैक्शन इज नथिंग। क्लियर? इफ यू नो अबाउट एडिशन यू कैन परफॉर्म सब्सट्रैक्शन मच बेटर देन द एडिशन। ये बात समझ में आ रही है? ऑन कमिंग टू द फर्स्ट अगेन द एडिशन,
तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या आपका ये ग्राफिकल मेथड है एज वेल एज योर एनालिटिकल मेथड है। तो एनालिटिकल मेथड ग्राफिकल मेथड से ही प्रूफ होगा, और ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे वेक्टर क्वांटिटी का, और ये कह सकते हो ये इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन रहेगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है। फिर ऑन कमिंग टू द ग्राफिकल मेथड, in the graphical method is what? In the graphical method we have three types of method over here. The first method is said to be your head to tail method. Correct. Second method होता है graphical में, that is your triangle law of vector addition. देखो अमरूद भुट्टा बेच रहा है मन से, उसको कई बार मना कर चुका हूं मैं। थर्ड क्या होता है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, जो होता है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर होता है ये थ्री टाइप्स के होते हैं ग्राफिकल मेथड। पहला होता है हेड टू टेल मेथड, फिर दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और फिर तीसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात समझ में आ रहा है? तो इनको हमें आज ही परफॉर्म करना है, और ये सब की सब चीज़ें आज ही खत्म करनी, सारे ऑपरेशंस को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन छोड़ के सब्सट्रैक्शन तक। क्लियर? सो क्या करते हैं, इसको अपन यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीके से ये रिमूव करते हैं। और सबसे पहला मेथड देखते हैं अपन यहाँ पर ये, दैट इज योर हेड टू टेल मेथड। क्लियर? सो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट मेथड है ये, दैट इज योर हेड टू टेल मेथड। करेक्ट? अब हेड टू टेल मेथड में क्या होता है और किस तरीके से होता है, तो बहुत ध्यान समझना है यहाँ पर। ये जो हेड टू टेल मेथड होता है इसमें दो वेक्टर्स को ऐड करना। अपने को दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए स्पेशल कहानी क्यों करनी पड़ रही है, तो रीजन ये है, देखो यहाँ पर सपोज तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है, और वेक्टर ए कितना है, तो आपने कहा कि सर वेक्टर ए है 10 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आपके पास एक वेक्टर बी है, ये कितना है आपका ये, दैट इज 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। मुझसे कहा गया दोनों को ऐड करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करो। तो अब ऐसा नहीं कि दिस प्लस दिस करोगे और 10 प्लस 15 लिख दो, एक्स मतलब 15 आ गया, 10 प्लस 5 कितना आ गया, 15 आ गया। नहीं, इस वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये पॉजिटिव वाई की तरफ है, ये इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वाई की जगह पॉजिटिव एक्स लिखा होता तब आप सिंपली ऐड कर देते, तब आपका आंसर आता 10 प्लस 15 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तब तो कोई इशू ही नहीं था, तब तो ये एक सिंपल नंबर की तरह ऐड हो जाता, बशर्ते जब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है आपकी सेम होती। लेकिन फिजिक्स में ये रेयरेस्ट केस होता है कि जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो जाए और आपको डायरेक्ट क्या करना पड़े, ये ऐड करना पड़े। इसके लिए क्या है, यहाँ पर कौन सी एक्सिस ली आपने, यहाँ पर ये दैट इज और वाई एक्सिस ले लिया। अब प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी, अगर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जो पिछली क्लास में बनाया था मैंने, ये तो 10 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज योर ए। इसकी एरो की लेंथ 10 यूनिट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ है। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया तो ये वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। ये वेक्टर कितना है आपका, ये बी वेक्टर है, इसका एरो का लेंथ 5 है और डायरेक्शन की तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना, ये बात समझ में आ रही है। देन हाउ टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, और जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर्स के ऐड करने के बाद भी जो क्वांटिटी आती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है, और अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो हमें यहाँ पर किस मेथड को अप्लाई करना है, दैट इज योर हेड टू टेल मेथड। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस मेथड इज योर, this method is not applicable only for addition of two vectors. You can add infinite number of vectors from this method. Clear? This is the only method through which you can add more number of vectors from this one. ये बात समझ में आ रही? Otherwise the next method written by me was the triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition. They are limited. They are used only for the addition of two vectors. Clear? But this method allow the addition of multiple or several vectors. Clear? So how to add these two vectors over here? So यहाँ पर क्या है, I have to assume suppose this is a vector A. Okay, what is the magnitude? I don't know. If you know about magnitude, you have to measure this tail of this arrow. Clear? And this is your vector V. Somebody asked me that find A vector plus B vector is how much. It means he is interested to do the addition of these two vectors. Then how to add these two vectors? Firstly, which vector is coming? That is your A vector.
तो फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ a vector in your graph paper, like same direction, same length of arrow. Here I am going to draw vector a again. Clear? Now which vector is going to be at b vector? So you have to put tail of b vector on the head of vector a. Clear? तो यहाँ पर इस वेक्टर a की हेड में वेक्टर b की क्या लगा देनी है, आपको टेल लगा देनी है. तो वेक्टर b किधर की ओर है, आपका इधर की ओर है, और जैसे ही टेल लगाई थी ये बन गए. ये बात समझ में आ? That's why the method is said to be your head to tail method. A की हेड में किसकी टेल लगानी है, आपको वेक्टर b की टेल लगानी. फिर बिना कुछ सोचे समझे बच्चा, शुरुआत यहां से हुई है, फिनिश यहां पर किया है, दोनों को मिला दो और यहां पर क्या लगा दो, आप ये r लिख दो और डायरेक्शन लगाना है इनिशियल से फाइनल की ओर, और इसके ऊपर वेक्टर लगा दो. ये r वेक्टर क्या है, ये इन दोनों का एडिशन हो गया, और जिसको बोलते हैं, कौन सा वेक्टर बोलते हैं आप, ये दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं. रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब दोनों को ऐड करने के बाद कितना वैल्यू आया है वो हमें बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर. अब ध्यान समझना कैसे. अभी मैंने यहाँ पर लिखा था एक वेक्टर ए, और मैंने लिखा था आपका ये दैट इज योर 10 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा था. एक वेक्टर बी लिखा था मैंने, तो उसको लिखा था मैंने ये दैट इज योर 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस लिखा था. इतना लिखा था ये. तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए को अच्छे से ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लो. ठीक, दैट इज योर 10 यूनिट है. वेक्टर बी को भी अच्छे से ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लो. ये कितना है आपका, ये 5 यूनिट है, और इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो इन दोनों को ऐड करना है, तो वेक्टर ए के हेड में किसकी टेल लगा दोगे आप, वेक्टर बी की टेल लगा दो. तो वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी की क्या लगा दी, अपन ने टेल लगा दी. हमें इसकी लेंथ पता है, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी लेंथ भी पता है, ग्राफ पेपर पर भी है. अगर अपन मिला के इसकी लेंथ को क्या ग्राफ पेपर पर मेजर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मेजर कर लेंगे, और इसकी जो भी लेंथ आएगी वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा. रिजल्टेंट का मतलब ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी. ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम. और इसका मैग्नीट्यूड आप क्या कर सकते हो, आराम से ग्राफ पेपर पर क्या कर लो, आप फाइंड आउट कर लो, उसको स्केल रख के मेजर कर लो, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. द वन मोर थिंग, कोई पूछे इस वेक्टर की डायरेक्शन कितनी होगी, तो ये जो वेक्टर है यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो सपोज ये वेक्टर ए के साथ कितने एंगल पर है आपका, ये थीटा डिग्री पर है. ये बात समझ में आ रही है. तो कोई पूछे इस वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये थीटा डिग्री किसके साथ है, वेक्टर ए के साथ है. किस एंगल में है, एंटी क्लॉकवाइज. तो इसकी डायरेक्शन होगी आपकी ये दैट इज योर थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेक्टर ए. ये बात समझ में आ रहा है. मैग्नीट्यूड कितना होगा तो स्केल से मेजर कर लो. डायरेक्शन चाहिए तो देखो वेक्टर ऐसे कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को भी प्रोटेक्टर से क्या कर लोगे आप, मेजर कर लोगे, कंपास से, प्रोटेक्टर से, जो भी यूज करते हो आप ये, तो वो एंगल भी क्या हो जाएगा आपके निकल के ये आ जाएगा. इतनी बात समझ में आ रही है, ये डन. अब यहाँ पर क्या है, इन्हीं दोनों वेक्टर्स में मुझसे पूछ रहा है ये कि फाइंड बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. मुझसे क्या पूछ रहा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी. फर्स्टली कौन सा वेक्टर आ रहा है आपका, ये बी वेक्टर. तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा वेक्टर ड्रॉ करोगे आप, वी वेक्टर हमारे पास है. सेकंड कौन सा आ रहा है आपका, ए वेक्टर. ए वेक्टर, अब बी के बाद ए आ रहा है, इसलिए बी के हेड में किसकी टेल लगाएंगे, ए वेक्टर की. तो बी के हेड में किसकी टेल लगा दी यहाँ पर अपन ने, ये दैट इज योर ए वेक्टर की टेल लगा दी. कुछ भी बिना सोचे समझे इनिशियल से फाइनल को क्या कर देना, आपको मिला देना है, और इधर एक लगा देना है इस तरीके से, ये इस तरीके से. क्लियर. और ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वी वेक्टर प्लस कितनी हो जाएगी आपकी ए वेक्टर. यहाँ का आर वेक्टर इस तरीके से था, यहाँ का आर वेक्टर इस तरीके से था. जब इसको निकाल के बाहर ड्रॉ किया तो ये आर वेक्टर है, इसको निकाल के बाहर ड्रॉ किया तो ये भी आर वेक्टर है. दोनों की साइज भी इक्वल थी, दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल थी. तो इसका मतलब आप चाहे दो वेक्टर्स में a प्लस बी करो, चाहे b प्लस ए करो, दोनों वेक्टर्स का एडिशन क्या होगा आपका, सेम टू सेम. मतलब यहाँ पर क्या कहा जाता है कि वेक्टर्स का जब एडिशन करते हैं ये, तो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, b प्लस ये कुछ मैथमेटिक्स में रूल्स होते हैं, कम्यूटेटिव रूल्स होता है या एसोसिएटिव रूल्स होता है, जहाँ लिख सकते हो आप 2 + 3 = 3 + 2. इसका मतलब वेक्टर का एडिशन इन रूल्स को क्या करता है आपका, ये फॉलो करता है. ठीक है, आगे चले. डन. ये इस तरीके से दो वेक्टर्स को क्या कर दिया अपन ने, ये ऐड कर दी. सपोज इफ वी वांट टू ऐड मोर देन
two vectors like this. That is your vector A, and this is your vector B, this is your vector C, and this is your vector D. We want to add four vectors like this. Somebody is saying that find A vector plus B vector plus C vector plus D vector. Then how to do this? Firstly, you have to draw A vector, same to same like this. That is your A vector. Then you have to put tail of vector B on the head of A. So here is your what? That is your vector B. Now you have to put tail of vector C on vector B previous के. तो C किधर की ओर है आपको कुछ ये इधर की ओर है. That is your vector C. Now you have to put the tail of vector D on the head of C. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? That is your vector D. And without thinking anything, meet them from initial to final. Initial से final, and this will become your resultant vector. Resultant vector का मतलब इन सब का एडिशन इतना आ गया. बात समझ में आ रहा है? Done. Now if anybody asks you that what find B vector plus D vector plus C vector plus कितना पूछ रहा आपसे A vector, करा इसको ऐड करके दिखाओ. तो firstly which vector you have to take? B vector. So here is your what? That is your B vector. On the head of B vector you have to put the tail of vector D. तो इसमें क्या कर दिया अपन ने? वेक्टर D की टेल लगा दी. फिर आपको कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है? वेक्टर C. तो यहाँ पर कौन सा वेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने? ये वेक्टर C ड्रॉ कर दिया. फिर इसके बाद कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है? वेक्टर A. और आपने यहाँ पर क्या कर दिया? वेक्टर A ड्रॉ कर दिया. जानबूझ के बता रहा हूँ इस तरीके से, आप ध्यान समझना ही. आप कहोगे सर वेक्टर कट गए, पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, ये तो गलत हो गया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वेक्टर जब ऐड करते हैं तो कोई वेक्टर कहीं भी जा सकता है, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं. बिल्कुल क्लियर. बस आपको ड्रॉ करते जाना, जो जिसको कट कर रहा है करते देना. क्लियर. बस इतना देखना है स्टार्टिंग कहाँ से की है, यहाँ से, और एंड कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर. और स्टार्टिंग से एंड को जरूर मिला देना. तो जो भी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इन सब का ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन. तो इस तरीके से हेड टू टेल मेथड से वेक्टर्स को क्या करते हैं अपन? ये ऐड करते हैं. ठीक. उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा तुम लोग को. और समझ में आ जाए तो ये कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ सर मेरा नाम ये है, मुझे वीडियो समझ में आया. कुछ लोग कमेंट केवल इसलिए करते हैं कि उनकी अटेंडेंस इंक्लूड हो जाए. वीडियो खोला, नाम लिखा, क्लास लिखी, गायब, वीडियो देखा भी नहीं. ये बात समझ में आ रहा है? तो वो लिखना पड़ेगा कि हाँ सर ये वीडियो समझ में आ गया. करेक्ट. और यहाँ पर क्या है आपका? ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ. ठीक. अब इसके बाद अपन चलते हैं ये सेकेंड मेथड पर. सेकेंड मेथड से पहले एक चीज और, छोटा सा टॉपिक है ये, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. कह रहा अगर वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है? ध्यान समझना. क्या कह रहा है ये? कि अगर वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा. क्लियर. तो यहाँ पर स्केलर को क्या बोल देते हैं? लैम्डा. स्केलर का मतलब कोई एक नंबर हो गया. ये बात समझ में आ रहा है? स्केलर का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक नंबर. तो अगर वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जैसे यहाँ पर इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर ए लिखा है, किसी का मूड किया इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 वेक्टर है हो गया. किसी का मूड किया इसको 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 वेक्टर हो गया. किसी का मूड किया इसको इसने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 ए वेक्टर हो गया. किसी ने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी ने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये तो क्या फर्क पड़ता है जब किसी वेक्टर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर का मतलब हमेशा स्केलर. करेक्ट. जब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वेक्टर कितने तरीके का होता है आपका. ये नंबर कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से. या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर. और जीरो भी होता है. तो जीरो से मल्टीप्लीकेशन अपन जीरो वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि जीरो वेक्टर इंटू ए वेक्टर लिखा था, उसका आंसर कितना आया था आपका? ये 0 आया. ये बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो स्केलर होगा ये, वो या तो कैसा रहेगा आपका ये, दैट इज जो फ्रॉम पॉजिटिव स्केलर. अगर वो पॉजिटिव स्केलर है तब क्या रिजल्ट आएगा. और दूसरा क्या हो सकता है आपका यहाँ पर ये, दैट इज जो नेगेटिव स्केलर होगा, तब रिजल्ट क्या निकल के आएगा. ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? सो अब ध्यान समझना, ये
एक बहुत छोटी सी चीज़ है, वो समझ में आ गई थी तो सब घटिया सी चीज़ें हैं फिजिक्स की। ठीक है, यहाँ पर देखो ये यहाँ लिखा है वेक्टर है और इसको मैंने लिख दिया ये 10 यूनिट along पॉजिटिव एक्स एक्सेस। क्लियर, डन। किसी ने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया ट्वाइस है वेक्टर। क्लियर, ये 2 किसके पास जाएगा, तो 2 एक मैग्नीट्यूड है, 10 भी एक मैग्नीट्यूड है, दोनों बीच में इनटू का साइन लगा है, तो 2 किसके पास चला गया, 10 के पास। तो ये कितना हो गया आपका ये, दैट इज योर 20 यूनिट अलॉन्ग क्या हो गया आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब जब भी किसी पॉजिटिव स्केलर से आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड 10 से 2 टाइम्स बढ़कर कितना हो गया 20, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा जिस स्केलर से तुमने मल्टीप्लाई किया। 3 टाइम्स करते तो मैग्नीट्यूड 30 हो जाता, 1/2 टाइम्स करते तो मैग्नीट्यूड 1/2 मतलब 5 हो जाता। लेकिन पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के दौरान उस वेक्टर की डायरेक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन यहाँ पर कैसी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पर भी डायरेक्शन कैसी है आपकी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। तो वेक्टर में जब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है, चेंज का मतलब इंक्रीज होता है, कितना, जितना टाइम्स स्केलर होगा उतना टाइम्स मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, पूरा हॉच पॉच कर दिया मैंने, फिर से लिखना पड़ेगा इसको ही, करेक्ट। उसका क्लियर है हिसाब किताब कि मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर ये स्केलर लैम्डा है और लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वेक्टर पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस था तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही रहेगा, ओवर हियर। तो हियर इज रिटन एज योर वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या लिखा है आपने ये 5 यूनिट है, दैट इज योर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपने कहा कि मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो भाई -3 इधर भी तो आएगा भाई। अगर इधर -3 करोगे वेक्टर में तो जो वेक्टर का है पूरा पोर्शन उधर भी कौन सा आएगा आपका, -3 आएगा ही। इधर भी कौन सा आ गया आपका, ये -3 आ गया। अब ये -3 में देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से। इसको ऐसे नहीं लिखना है कि सर -15 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब -15 मतलब 15 क्या एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पापा ने कहा बेटा 5 किलो चीनी ले आओ, तो तुम दुकानदार के पास पहुंच गए, पापा भैया मुझे -5 किलो चीनी दे दो, तो देने के बजाय तुमसे 5 किलो चीनी ले लेगा ना, उसके हिसाब से तो माइनस ये हुआ। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई पूछे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है तो 15 है, ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस कहीं और नहीं जाएगा, ये माइनस पहुंच जाएगा डायरेक्शन के पास। तो ये जो वेक्टर बन जाएगा ये ऐसे बन जाएगा, दैट इज योर 15 अलॉन्ग -x एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा, जब नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड तो 3 टाइम्स बढ़ ही गया, मैग्नीट्यूड तो सेम टू सेम बढ़ रहा है उसके तरीके, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर की रिवर्स हो गई। अगर वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो रिवर्स हो गई, किधर आ गया आपका वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आते हैं यहाँ पर ये, दैट इज जो पॉजिटिव स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर मैग्नीट्यूड चेंजेस एंड डायरेक्शन सेम रहता है आपका। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये वेक्टर है, क्लियर। कोई पूछे इसकी डायरेक्शन किधर, तो हेड इधर है, डायरेक्शन इधर। कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड कितना, जितना बड़ा टेल है ये। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि नहीं भाई ये बताओ कि 2a वेक्टर कितना होगा, तो मुझे पता है कि 2a वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना कर देना, डबल। मैग्नीट्यूड का मतलब इसके एरो की लेंथ कितनी कर देनी, डबल। क्योंकि नंबर पॉजिटिव इसलिए डायरेक्शन कैसी रहनी है, सेम रहनी है। तो 2a वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपको कौन सा वेक्टर निकल के आएगा आपका ये, दैट इज योर 2a वेक्टर। कोई पूछे 3a वेक्टर निकालो, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसके एरो की लेंथ कितने टाइम्स बढ़ जाएगी आपकी ये, दैट इज योर 3 टाइम्स बढ़ जाएगी ये। तो ये कौन सा वेक्टर निकल के आएगा यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर 3a वेक्टर आएगा। कोई के हाफ ए वेक्टर बनाओ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ये, इस तरीके से। ये डायरेक्शन फिर भी सेम रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये हाफ ए वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो कौन सा स्केलर है आपका ये, द पॉजिटिव स्केलर इज ओवर हियर। यहाँ पर वेक्टर का नेगेटिव स्केलर है,
अब नेगेटिव स्केलर में पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड तो k टाइम्स बढ़ जाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है आपकी, रिवर्स हो जाती है। सो यहाँ पर कैसा है आपका ये, दिस इज योर वेक्टर है, आपने इसको -2 से मल्टी, मतलब आई वांट -2 है, तो मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा, मतलब एरो की लेंथ क्या रहेगी आपकी, डबल हो जानी, लेकिन डायरेक्शन क्या कर देना आपको इसकी है, रिवर्स कर देना। आपको ड्रॉ करना -3 है, तो क्या होना है आपका ये, एरो की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ट्रिपल हो जाएगी इस तरीके से, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी। आपको ड्रॉ करना -12 a, तो एरो की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी ये, रिवर्स हो जाएगी। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं तब वेक्टर्स किस में कहलाते हैं आपकी ये, मतलब तब इसका मतलब वेक्टर में किस स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया आपका ये, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि छोटा सा टॉपिक आपको क्या हुआ होगा, ये समझ में आ गया होगा। डन। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको ये, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसका एक पार्ट मैं करके बताऊंगा ये, कि वेक्टर है इज लाइक दिस, कितना ही बड़ा, सारे वेक्टर्स आप इक्वल ड्रॉ करोगे, अगर एक वेक्टर 2 सेंटीमीटर तो अगला भी 2 सेंटीमीटर, अगला भी 2 सेंटीमीटर, अगला भी 2 सेंटीमीटर, करेक्ट, बिल्कुल इक्वल ड्रॉ करना। ए वेक्टर इज लाइक दिस एंड दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर सी वेक्टर एंड दिस इज योर डी वेक्टर। सबकी एरो की लेंथ सेम है, डायरेक्शन आप देख लेना अपने हिसाब से, ये करेक्ट कैसी है। यहां पर क्या करना है, फाइंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्लियर? ये फर्स्ट था। सेकेंड क्या कह रहा है आपका, ये माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस 3d वेक्टर 2d वेक्टर। फिर थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, ये दैट इज योर ए वेक्टर प्लस -2b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर माइनस डी वेक्टर। फोर्थ क्या कह रहा है आपका यहाँ से, ये दैट इज योर -2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर प्लस 2d वेक्टर। कह रहे हैं इन सबको आपको फाइंड आउट करना, करेक्ट। और किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, हेड टू टेल मेथड से। बस मुझे आंसर नहीं चाहिए, बस मुझे इसका डायग्राम चाहिए। बस एक पार्ट करके बता रहा हूँ, सबसे ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट। क्लियर? ए वेक्टर में इसको ऐसे लिख लो, कैसे, इस तरीके से, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसको ये सिंपल सा वेक्टर का एडिशन है। ए वेक्टर में किसको ऐड करना है, 2b वेक्टर को, 2b वेक्टर में किसको ऐड करना है, माइनस सी वेक्टर को, और माइनस सी में किसको ऐड करना है आपको, डी वेक्टर को ऐड करना है। ये बात समझ में आ रही है? तो ए वेक्टर तो एज इट इज दिया हुआ है, किधर की ओर है आपको, ये इधर की ओर, दैट इज योर ए वेक्टर। ए वेक्टर की हेड में किसकी टेल लगानी है आपको, 2b वेक्टर की। तो 2b वेक्टर किधर की ओर है, b वेक्टर इधर की ओर है, 2b करना है। अब 2 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव स्केलर है, इसका मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मतलब अगर b वेक्टर ये है तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा आपका, ये 2b वेक्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका, ये 2b वेक्टर हो गया। फिर c की जगह कह रहा माइनस सी वेक्टर, मतलब c में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो -c बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। मतलब c वेक्टर अगर इस तरीके से है तो -c वेक्टर किधर की ओर आ जाएगा आपका, इधर की ओर आ जाएगा ये। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका, ये दैट इज योर, दैट विल बिकम योर -c वेक्टर। और फिर लास्ट में कौन सा वेक्टर है, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर किधर की ओर है आपका, ये इधर की ओर है, दैट इज योर डी वेक्टर। बिना कुछ सोचे समझे इनिशियल से फाइनल आप मिला दोगे, दैट विल बिकम योर आर वेक्टर। इस तरीके से आपको सारे क्या करने हैं यहाँ पर, ये परफॉर्म करने। ये बात समझ में आ रहा है? ये डन। अपन अनदर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मेथड होता है वेक्टर एडिशन का, दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात समझ में आ रहा है? ध्यान समझना, इसका स्टेटमेंट क्या है, if two vectors are represented by two adjacent sides of a triangle, then third side of triangle will be the resultant of these two vectors। ये इसका स्टेटमेंट, मतलब क्या कह रहा है, सिंपल से ये सपोज मेरे पास क्या कह रहा है आपका, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कैसा है आपका, ये बी।
कह रहा दोनों को ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये इसको वेक्टर ए बना दिया और बोल दिया कि ये यहाँ से वेक्टर बी हो गया। ये ट्रायंगल की दो साइड्स होगी। क्या तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी दिस, ये इन दोनों का क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। ये बात समझ में आ रही है। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्लियर, adjacent sides of a triangle, then third side of the triangle will be the resultant of these two vectors. Resultant का मतलब हमेशा क्या होता है, इन दोनों का सम। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये कोई नया मेथड नहीं है, ग्राफिकल मेथड में ही है। अगर हमसे कोई कहता है कि a प्लस बी निकालो तो अपन a की हेड में किसकी टेल लगा देते, b की। ये तो कुछ वैसा ही निकल रहा ना जैसा पढ़ रखे हैं अपन। तो वहां से है बिल्कुल ग्राफिकल मेथड ही, उसको बोलने का तरीका क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो गया, आपको कुछ इस तरीके से हो गया, करेक्ट। तो इसको स्टेटमेंट लिखना और ये बना के ये डायग्राम ऐसे ही बना लेना। तो क्या कहता है ये, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन थर्ड साइड विल बिकम द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स। ये बात समझ में आ रहा, डन। फिर इसके बाद एक और लॉ होता है आपका ये, दैट इज योर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, एक और आता है आपका, ठीक। ये क्या कहता है, कि टू वेक्टर्स इस तरीके से, किस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान समझना। कह रहा है कि जो दो वेक्टर दिए रहे ना, दोनों वेक्टर्स को एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करो, मतलब दोनों वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स बना लो। तो कैसे बनेंगे कोइनिशियल वेक्टर, देखो यहाँ पर ये दैट इज, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इधर की हो रही है। तो ये दोनों को मैंने क्या कर लिया, कोइनिशियल वेक्टर, मतलब दोनों को एक सेम पॉइंट से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। सेम पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। कैसे, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो उतना ही लेंथ का, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो उतना ही लेंथ का, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। किसी पैरेललोग्राम के पास दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल इसका ये है और दूसरा डायगोनल इसका ये है। ये बात समझ में आ रहा है, ध्यान समझ आइए। एक डायगोनल इसका ये है और दूसरा डायगोनल इसका ये है। तो इसका वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से पास हो जहां से वेक्टर स्टार्ट हुए, मतलब ये वाला डायगोनल, ये इन दोनों वेक्टर का क्या कहलाएगा, आपका ये रिजल्टेंट कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये रिजल्टेंट का मतलब R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये A वेक्टर प्लस V वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है आपका ये, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है व्हेन टू वेक्टर्स स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, देन द पैरेललोग्राम कंप्लीटेड बाय टू वेक्टर्स। ये बात समझ में आ रही है क्या, फिर से देखते हैं। ये टू वेक्टर्स स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, देन the resultant of, then the diagonal of that parallelogram which passes from the same point of the vectors is said to be the resultant of these two vectors, and this law is said to be your parallelogram law of vector addition. इसको फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, when two vectors are starting from same point, then diagonal of that parallelogram, ठीक, which passes through the starting points of the vector is said to be the resultant of two vectors, and this method is called your parallelogram law of vector addition. ये बात समझ में आ रही है। और ये कोई नया मेथड नहीं है बच्चा, यहाँ पर इसको आसानी से समझा जा सकता है। ये वेक्टर बी, ये डायग्राम इतना बना लेना, इसके बाद जो समझा रहा हूँ उसको बनाने की जरूरत नहीं। ये वेक्टर बी है, वेक्टर को तो कहीं भी कट करके रख सकते हो, इस वेक्टर को कट करके यहाँ रख दें, करेक्ट। तो इस वेक्टर बी को कट करके यहाँ रख दिया। ऐसे ही लग रहा है जैसे ए की हेड में किसका टेल लगा हुआ है, बी का टेल लगा हुआ है। तो ये ए से की हेड में बी का टेल, इनिशियल से फाइनल क्या हो गया, आपका रिजल्टेंट हो गया। ये बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो यहाँ वेक्टर एडिशन के तीनों मेथड्स क्या हो चुके हैं, आपके फिनिश हो चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है। एक थोड़ा सा और बचा यहाँ पर, ये दूसरा मेथड देखते हैं यहाँ पर इसका। ये वो कौन सा मेथड है आपका, ये दैट इज योर एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात समझ में आ रहा है, ये करेक्ट। ये डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि इस टाइप की डेरिवेशन अभी तक पहले नहीं किए हो आप। ये
वेक्टर्स की लैंग्वेज का फर्स्ट डेरिवेशन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं इस डेरिवेशन में और कैसे कर रहा हूँ। ठीक, तो एनालिटिकल मेथड में क्या है, दो वेक्टर एज्यूम करने पड़ते हैं। ये लेट टू वेक्टर्स A and B having magnitudes A and B and angle between them is थीटा। इसमें दो चीजें हमें दी रहेंगी, दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, उनके मैग्नीट्यूड दिए रहेंगे। भाई वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, और यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया रहेगा। भाई दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पर हैं, दोनों वेक्टर्स आपका 0 डिग्री पर हैं। देखो एक वेक्टर बताना भूल गया, एक और टाइप्स ऑफ वेक्टर होता है, जहाँ नहीं पढ़ा था लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर, वहाँ पर एक और टाइप ऑफ वेक्टर होता है और उसको बोलते हैं अपन ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, इतना ही डन। सो यहाँ पर क्या है ये कि सपोज दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और उनके मैग्नीट्यूड्स कितने हैं आपके यहाँ पर, ये a प्लस बी, ठीक, ए और बी। तो उनको मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। सपोज ये क्या है आपका, यहाँ पर ये वेक्टर ए, ठीक, और यहाँ पर ये कैसा है आपका, इस तरीके से ये सपोज कौन सा हो गया, ये वेक्टर बी, ठीक। यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, कितना एंगल दिया हुआ है ये, दैट इज योर थीटा। फिर अपन ने इसको क्या किया, ये पैरेललोग्राम को इस तरीके से ये कंप्लीट किया, इस तरीके से ये पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। फिर यहाँ पर क्या किया अपन ने, एक डायगोनल खींचा, जो डायगोनल कहाँ से होकर पास हुआ, उन्हीं वेक्टर से ये, तो ये डायगोनल इनका क्या कहलाया आपका, ये रिजल्टेंट कहलाया, करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा नाम दे देते हैं अपन, ये दैट इज योर, ये P है, ये Q है, ये S है, ये T है, और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद S पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं, और ये इस जगह मिलता है। तो सपोज ये क्या है यहाँ पर आपका, ये U, ये एक छोटे से डायग्राम की क्या बनेगी आपको, ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये दो डायग्राम आपको समझ में आया होगा जो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले क्या बनाया मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा लिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट करके उसका रिजल्टेंट बनाया, और रिजल्टेंट जहाँ जिस पॉइंट पर फिनिश हो रहा है उस पॉइंट से वेक्टर ए पर मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, जो कि किस पॉइंट पर ड्रॉप हुआ, जाकर वो यू पॉइंट पर ड्रॉप हुआ। अब ध्यान समझना, कोई पूछे इस एरो की लेंथ कितनी है, पी टी की वैल्यू कितनी, तो पी टी कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये बात समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना है यहाँ पर। ये अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ये एरो की लेंथ होगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना ए है, मतलब यहाँ पर कोई पूछे कि इस एरो की लेंथ कितनी है, योर आंसर मस्ट बी योर ए, क्लियर। यहाँ पर कोई पूछे इस एरो की लेंथ कितनी है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी है, बी का मतलब एरो का लेंथ, तो इसका एरो का लेंथ कितना हो गया आपका, यहाँ पर ये बी हो गया। अब ध्यान समझना ये, अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो पी क्यू जितना होगा एस टी भी उतना ही होगा। तो कोई पूछे एस और टी के बीच की वैल्यू कितनी है, एस और टी का, तो ये भी कितना हो जाएगा बी, क्योंकि सामने वाली साइड्स कैसी होती हैं आपकी, यहाँ पर ये इक्वल होती हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर देखो ये और ये साइड कैसी है आपकी, पैरेलल है, ये बात समझ में आ रही है। अगर इस और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। खुद से बैठ के सोचना थोड़ा सा इसको, क्लियर। इस और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो इस और इसी लाइन के बीच में भी एंगल कितना रहेगा आपका, यहाँ पर ये थीटा रहेगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एनालिटिकल मेथड से कि जो वेक्टर को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड कितना और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो सपोज रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका आर, उसके मैग्नीट्यूड का मतलब हमको क्या निकालना है, इस लाइन की लेंथ निकालनी, क्योंकि ये जो एरो है ये वेक्टर आर को बता रही। अगर इसकी लेंथ निकाला है तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पर ये आर की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें ही। तो एक ट्रायंगल देखना बहुत ध्यान से, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब हमें करना क्या, आर की वैल्यू निकालनी ना, तो हम बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे। अभी ये बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि 90 डिग्री ड्रॉ की, और अपन यहाँ पर लगाएंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये लगा देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, 100% आ जाएगी, क्लियर। लेकिन उसके पहले वी हैव टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ एस यू एंड द वैल्यू ऑफ टी यू, कि ये वैल्यूज कितनी होंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, ये यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दैट इज योर इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल ढूंढते जाना, एस टी यू दिख रहा है ट्रायंगल एस टी यू,
इन ट्रायंगल एस टी यू, यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने cos थीटा, क्लियर। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो गया आपका यहाँ पर ये दैट इज योर टी यू, और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका ये एस टी हो गया। तो यहाँ से टी यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ये दैट इज योर एस टी कॉस थीटा आ गई, और एस टी की वैल्यू कितनी है आपके पास ये, तो एस टी की वैल्यू बी है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल है, तो अगर इसकी लेंथ बी है तो इसकी लेंथ बी होगी, तो ये हो गया टी यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ये दैट इज योर बी कॉस थीटा। अगर इसी ट्रायंगल एस टी यू में, इसी ट्रायंगल एस टी यू में आप लगा दो यहाँ से ये साइन थीटा, तो साइन थीटा इज व्हाट दैट इज अगेन योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका एस यू, और बेस कितना है आपका ये दैट इज योर एस टी है, तो यहाँ से एस यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये एस टी साइन थीटा, तो मतलब एस यू इज इक्वल टू कितना आ गया आपका बी साइन थीटा, क्योंकि एस यू की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो कुल मिलाकर ये वैल्यूज निकल के आ गई हैं, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपकी ये दैट इज योर बी साइन थीटा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू निकल के कितनी आ रही है आपकी ये दैट इज योर वी कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल में लेते, इतना करने के बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है, एक बार में पूरा डेरिवेशन नहीं देख पाओगे यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल पी एस यू, क्लियर। सो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ मैं दैट इज योर इन ट्रायंगल पी एस यू, क्लियर। इन पी एस यू ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से ये लिख सकते हो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस यू स्क्वायर प्लस कितना लिख सकते हो आप यहाँ से ये पी टी स्क्वायर लिख सकते हो। भाई पी एस की वैल्यू कितनी है आर, इसी को निकालना है अपने को, ये हो गया आर स्क्वायर। एस यू की वैल्यू कितनी है तो दैट इज योर बी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी लिख दी अपन ने ये बी साइन थीटा टू द होल स्क्वायर, प्लस पी टी की वैल्यू कितनी है, सॉरी पी टी नहीं आएगा यहाँ पर पी यू आएगा, क्योंकि कंप्लीट ट्रायंगल में ले रहे हैं ना, तो पी एस स्क्वायर प्लस एस यू स्क्वायर प्लस पी यू स्क्वायर। अब PU को क्या लिख सकते हो, तो PU को लिख सकते हैं PT प्लस TU, क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से PT प्लस क्या लिख सकते हो आप ये दैट इज योर TU लिख सकते हो, एंड दैट विल बिकम योर होल स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन किया तो ये कितना हो गया V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस PT की वैल्यू कितनी है आपकी ये A है, और TU की वैल्यू कितनी है दैट इज योर B cos थीटा, तो दैट विल बिकम B cos थीटा टू द होल स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या किया अपन ने दैट इज योर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा ये, करेक्ट। सो यहाँ पर अपन ए स्क्वायर को पहले लिख रहे हैं प्लस इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बचा ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और प्लस कितना आ गया यहाँ पर आपका ये 2ab कॉस थीटा आ गया ये। सो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करके लिखा जाए इसकी पूरी वैल्यू ये, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी ये 1 होती है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो गई, तो बचा कितना केवल यहाँ पर आपका ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपका यहाँ पर 2ab कॉस थीटा आ गया, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो होल अंडर रूट हो जाएगा, एंड दिस इज द formula for resultant of two vectors। ये बात समझ में आ रहा है डन। अब ध्यान से समझना, ये फार्मूला हमें क्या बताता है, ये सपोज अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर कौन सा आपका बी है, अगर उन दोनों को हमने क्या करना ऐड करना है, जब ऐड करना तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है और बी का मैग्नीट्यूड पता है, साथ ही अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है तो उसका मैग्नीट्यूड आप इस फार्मूले से बता सकते हो, दैट इज योर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है। ये तो वैल्यू हो गई किसकी आपकी रिजल्टेंट की। तो कोई ये भी तो पूछ सकता है ना भाई दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी वेक्टर के पास, तो क्योंकि यार एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन नहीं पूछ सकता। डायरेक्शन लिए मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्शन लिए यहाँ पर ये एज्यूम कर लो कि सपोज आर वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज ये लैम्डा एंगल बना रहा है, तो हमें ये पता है ना कि वेक्टर आर की डायरेक्शन किधर है, तो वेक्टर आर की डायरेक्शन ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज लैम्डा एंगल पर है, तो अगर लैम्डा निकाले तो वो लैम्डा इस वेक्टर आर का क्या हो जाएगा डायरेक्शन हो जाएगा ये। सो यहाँ पर अपन ने लिखा ये लेट आर इज मेकिंग लैम्डा एंगल फ्रॉम वेक्टर ए,
क्लियर। सो कितना हो जाए, लैम्डा एंगल बना रहा है किससे, आपका वेक्टर ए से बना रहा है ये। सो इन ट्रायंगल देख लो ध्यान से फटाफट कैसे लैम्डा निकालेंगे। इन ट्रायंगल PSU अगेन इन द सेम ट्रायंगल अपने को लैम्डा निकालना है, तो यहाँ पर लगा देते हैं tan लैम्डा। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पर SU और बेस कितना है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर PU है। तो SU को तो SU ही रहने दो, PU को क्या लिख सकते हो आप, PT प्लस TU लिख सकते हो। क्लियर। सो यहाँ से tan लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, SU की वैल्यू रखो तो ये कितना आ रहा है आपका ये B साइन थीटा, PT कितना है आपका ये A प्लस B कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता ही थे, एंगल्स पता ही थे उनके बीच में वेक्टर्स के। तो अगर इस फॉर्मूले में रख दोगे तो यहाँ से tan लैम्डा की वैल्यू आएगी, और अगर tan लैम्डा की वैल्यू आ गई तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा वेक्टर आर की क्या है, डायरेक्शन है। मतलब क्या है, ध्यान समझना। सपोज B A और थीटा की वैल्यू रखने के बाद इधर आ गया √3, कितना आ गया आपका ये √3 आ गया। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, √3 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, tan लैम्डा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री लिख सकते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। इसका मतलब जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए से कितने एंगल पर डायरेक्टेड है, दैट इज योर 60 डिग्री पर डायरेक्टेड है। तो ये दिस इज सेड टू बी योर एनालिटिकल मेथड। इस मेथड के डेरिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। So I hope you all have the reference book as well as your NCERT, or if you doesn't have anything, you have mobile as well as the internet on the mobile. So you can search the problems based on the addition of two vectors by analytical method. Then you get the numerous problem. Otherwise I will send you sheet in the next video. I will tell you the आपका ये पूरा हिसाब किताब बताऊंगा किस तरीके से इसको एरिया सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। ये बेसिकली डेरिवेशन है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना और इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे अपन, ये आज पढ़ाने का मूड कर रहा है अभी, ठीक है। और वो छोटा सा मेथड है जो नेक्स्ट है। तो वेक्टर का अलजेब्रा में फर्स्ट पोर्शन टोटली कंप्लीट है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड हो गया, एनालिटिकल मेथड हो गया। द सेकंड थिंग क्या था यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो हाउ टू सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स, ये बात समझ में आ रहा है। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सपोज मेरे पास यहाँ पर ये वेक्टर ए है और ये इस तरीके से क्या है आपका ये वेक्टर बी है। हमसे कोई कह रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना होगा, तो अपने को सब्सट्रैक्ट नहीं करना, अपने को ऐड ही करना है। तो इसको ये एज्यूम करो कि सपोज ये अगर ऐसा होता है वेक्टर ए प्लस माइनस क्या लिख सकते थे, इसको आप ये वेक्टर बी लिख सकते थे। इसका मतलब वेक्टर ए में किसको ऐड करना, किसको ऐड करना है, माइनस बी को। तो अगर वेक्टर बी इधर है तो माइनस बी किधर होगा, आपका इधर होगा। अब आपको वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड करना है, तो सबसे पहले वेक्टर ए आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। उसके हेड में किसकी टेल लगा दोगे आप, माइनस बी की लगा दोगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका रिजल्टेंट आ जाएगा ये, एंड दैट इज विल बिकम योर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर। फिर इसके बाद क्या है, कोई ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज योर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा आपका ये। तो इसको भी ट्रीट करो एडिशन की तरीके। तो बी प्लस कितना हो जाएगा आपको ये माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद बी वेक्टर में आपको माइनस ए वेक्टर क्या करना है, आपको ये ऐड करना है। तो बी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर कैसे ऐड करोगे, तो अगर ए वेक्टर राइट साइड है तो माइनस ए वेक्टर किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ये बी वेक्टर है तो सबसे पहले कौन सा वेक्टर ड्रॉ करोगे, बी वेक्टर। उसके हेड में किसकी टेल लगा दोगे आप, इसकी टेल लगा दोगे, दैट इज योर माइनस ए वेक्टर। और दोनों को मिला दोगे तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर देखो एक का रिजल्टेंट राइट साइड है, दूसरे का रिजल्टेंट लेफ्ट साइड है, जिसका मतलब a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू व्हाट, b माइनस है। जिस तरीके से एडिशन में मैंने बताया था कि वो एसोसिएटिव रूल ऑफ एडिशन को क्या करता है, एडिशन फॉलो करता है वेक्टर्स का। लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन है वो वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता। वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इस कंडीशन पर आप ऐसा नहीं कह सकते हो ये कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ये, तो दिस इज योर सब्सट्रैक्शन, जो कि कुछ ऐसा होता नहीं सब्सट्रैक्शन जैसा, उसको एडिशन की तरीके ही अपन ने क्या किया, ट्रीट किया। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा आपको वेक्टर का। और इतनी लंबी क्लास लेने का केवल एक ही पर्पस था कि जो वेक्टर शुरू हुआ है इसको पार्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा तो भूलते जाओगे, इसलिए एक बड़ी क्लास लेके कम से कम वेक्टर्स का बेसिक क्या करना ख़त्म करना। अब अगले टर्न में भी लगभग वेक्टर ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म होगा, दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे वेक्टर के। और कुछ होते हैं, पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। नहीं, अगले टर्न पे नहीं खत्म होगा। आई नीड 2 more टर्न, क्लियर, ऑफ द सेम ड्यूरेशन, जो आज की ड्यूरेशन है लेक्चर की, देन आई विल फिनिश इट। क्लियर। सो करो और वीडियो में लिख दिया करो बच्चा कि समझ में आया कि नहीं आया। जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।